from first year CST, and I welcome you all to this presentation on the importance of mentorship and guidance of young people, which I guess is really important for us. We all have received our excellent grades. So there's a very touching quote that I read from this autobiography of late Steve Jobs that said, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Well, I hope it did make sense to each and every one of you, and even if it didn't, don't worry, we have our guest here for the occasion. We are thrilled to have Professor D.D. Ahe with us, a renowned youth motivation speaker. I request Professor Dr. Satish Manaik to please felicitate him. Good afternoon, everyone. It is my pleasure to introduce our guest speaker for today's session on confidence building, Professor D.D. Ahe. Professor Ahe is a well-respected and experienced youth motivation speaker, having delivered talks on a variety of topics, including self-reliance, goal achievement, and self-realization. With 38 years of experience in the academic field, Professor Ahe served as the principal of prominent government ITI colleges for 22 years before retiring in 2019. Prior to his time as a lecturer in government engineering colleges, he worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project and Chandrapur Hydroelectric Project. Professor Ahe holds a bachelor's degree in electrical engineering. We are honored to have him with us today to share his insights and experiences. Please give a warm welcome to Professor D.D. Ahe. And now I request for you, Professor, to please begin with the session. Good afternoon, friends. First of all, I am very much thankful to our honorable principal, Dr. Nandukar, and our honorable head of the department, Dr. Sane sir, that they have given me an opportunity to deliver my motivational speech to this engineering youth. Basically, I am an electrical engineer. I worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years and 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I worked as a lecturer to government technical colleges for 30 years. And then after, I worked as a principal to government ITS, various centers in Maharashtra. This is my hobby, to deliver motivational speech to the Indian youth, to fulfill the dreams of Vivekananda about youth. So, first I am delivering my motivational speech on confidence building. Friends, हिंदी समझते हैं आप सबको? Yes. Yeah. किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव होने लगता। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा आई तो फिर आप क्यों लज्जित हो गए? एक युवक था, उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन के मुस्कुरा कर क्यों ये उसकी सार्थक सोच थी। और जब
हर काम के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कर आत्मविश्वास बढ़ा। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर दौर से लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत थी, आश्चर्यचकित करने वाली, जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो स्कूल के दिनों में पढ़ाई ढीला ढाला सा लगता, अनुपस्थित भी रहता, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित किया। डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित किया, फिर भी वह प्रयत्न करता रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वह सेना में भर्ती हो गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पे तुड़वा कर वापस चला जाए। बहुत दिनों तक उसके विषय में उसके बारे में किसी बात की खबर नहीं, लेकिन अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े हुए जलते बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा लिए। इस प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। दोस्त के बाद हमें भी अपने जीवन में ऐसे अनेक युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर दिखलाते हैं। भले उनमें दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, संसार में, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने ही ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी और वह शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अभी तो शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। ये बहुत कम सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा देंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को केवल स्वप्न मात्र मानते हैं। वे अपने जीवन का अंग नहीं मानते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान लेते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तहसील ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास से। गाद का महान वीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उससे ललकारते हुए बोला, आओ, अगर किसी में साहस हो तो आगे बढ़े। परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चल सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुल्लकी और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए
दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। गोलियत ने जब निहत्थे इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा, तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चिल कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्भवती सुनकर डेविड ने कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर। डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमाकर केवल अपने आत्मा पर विश्वास जमाया था, अपने आत्मविश्वास पर उसको पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया, गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट हो गया। ये डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दिया। केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इसलिए कहा जाता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वह शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है, उसकी शक्ति स्वयं में दुगुनी हुई बढ़ जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को करता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण पाल ले, वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, तो वह कितना ही परिश्रम कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसे किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जागरूक करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रखता होता है, उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि संसार में उसे ईश्वर ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उसकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक लेटर है, वो लिखता है, मैंने अब तक न कुछ पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही असफल रहा हूं। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और भविष्य में भी मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण निश्चित है। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं। फ्रेंड्स,